Hello, let's continue the chapter vector calculus starting with line integral. अब line integral क्या है? It is basically a integral of a function along the curve. Again the question is कि integral क्या होता है? Integral is कि for example ये हमारा curve है. Now ये curve इस space में कितना area occupy कर रहा है? That is you will get after you integrate the function. In other words, you can say that the numerical value equal to the area under the graph of a function is the integral of a function. ठीक है, तो let us just go mathematically more कि एक function है be a vector field in space and a be a curve described in the sense of a to b. Let the continuous curve AB be subdivided into infinitesimal vectors. Now what is infinitesimal vectors? कि अगर हम वो कर्व के छोटे 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 पार्ट करें, that is each element would be equal to dr1, dr2, dr3 and so on to drn. तो उनके जो वैल्यूज़ होंगे that would be f1, f2, f3 so on till fn. Correct? Now if you want to get the sum of it, we will put the limit. लिमिट हम उसी के लिए ही यूज़ करते हैं कि हमें छोटे पार्ट्स का सम मिले. सो यहाँ पे वी आर getting the summation of fn dot dr from a to b, which is equal to the integral of f dot dr a to b. So now the question comes कि चलो ये सब तो ठीक है, but how are we actually going to solve the questions which we get? तो उसके लिए we are having a simple formula integration of f dot dr where f होगा हमारा function which would be given in the question और जो dr है that is dxi, dyj and dzk. उसका लिमिट होगा जो कर्व पाथ दिया होगा कहाँ से कहाँ तक, that is also mentioned in the question. So let us just start with the question. हमारा question क्या है? Evaluate f dot dr where f is this and c is the curve y square is equals to 4x in the plane xy from 0 0 to 4 4. ठीक है, सो अभी हमें सॉल्व करना कैसे है? f क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे. करेक्ट. डॉट डी आर हमने अभी जस्ट देखा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. सो नाउ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म और द जे विद द जे एंड के विद द के. यहाँ पे के नहीं है सो दैट इज़ ज़ीरो ओवर योर. तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर वाई डॉट डी एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई प्लस ज़ीरो. करेक्ट. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें ये जो कर्व दिया है वी आर हैविंग द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. उसको हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए तो क्या मिलेगा? 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4. करेक्ट. सो दैट इज माई y डॉट dy इज 2dx. करेक्ट. अब वाई डिड वी डू दिस? क्योंकि हमें पूरा जो इंटीग्रल है दैट इज़ आइदर इन दी एक्स टर्म्स और आइदर इन दी वाई टर्म्स. अगर मैं वाई को अभी फ़िलहाल इफ़ आई एम चूजिंग टू पुट एंटायर टर्म इन दी एक्स तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4x डॉट डी एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई की वैल्यू हमें है 2 डॉट डी एक्स. करेक्ट. अब डी एक्स में कॉमन लूँगी तो आई एम हैविंग 4x क्यूब प्लस 2 डी एक्स. करेक्ट. नाउ इंटीग्रेटिंग अभी हमने पूरा टर्म x के हिसाब से लिया है. करेक्ट. तो हमें लिमिट भी रखेंगे x के हिसाब से दैट इज 0 to 4.
So the limit my goes is 0 to 4. Now we are having our simple integration. So this is 4 raised to 4 upon 4 plus 2x, और इसकी लिमिट होगी हमारी 0 to 4. उसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. तो क्या है, पहले पूरा x की जगह पे 4 आएगा माइनस 0 0, करेक्ट. सो दिस 4 गेट्स कैंसिल. सो इट इज़ 4 raised to 4 प्लस 4 2s are 8 minus of 0. So that is 256 plus 8, which is 264. So my integral f dot dr is 264. Moving with our next question. What is the next question over here? F की वैल्यू गिवन है. Evaluate the line integral from 0 0 0 to 1 1 1 along the path 0 0 0 to 1 0 0 to 1 1 0 and 1 1 1. Correct. Now let us just go slowly with this. For example, this is my point 0 0 0. अभी यहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, 1 1 1. तो हमें इस पॉइंट तक आना है विच इज़ 1 1 1. पर यहाँ तक पहुँचने के लिए पाथ जो फॉलो हो रहा है दैट इज़ 0. उसके बाद हम एक और पॉइंट पे जा रहे हैं दैट इज़ 1 0 0. उसके बाद हम एक और पॉइंट पे आ रहे हैं दैट इज़ 1 1 0 एंड देन वी आर मूविंग टू दिस. So basically we are moving from your to your and then to your. So this is A, B, C, D. So this is how they are asking to find the line integral. अब how to solve this? हम एक एक पॉइंट से लेंगे, like first this two, then this two, then this two, and then we will add all the three. Correct? So how is it that f dot dr is equals to f dot dr a to b plus f dot dr b to c plus f dot dr c to d. Correct? अब first we are starting with along AB. So that is f dot dr a to b. फंक्शन क्या है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 6y i माइनस 14yzj प्लस 20xzk with dr that is dxi plus dyj plus dzk. Correct? Dot product है, so we will open it up. This first term is first, second and third, so on. So this is x square plus 6 dot dx minus 14yz dot dy plus 20xz square dot dz. Okay, now one more thing we have to make sure over here. Along AB what we have is हमारा जो x है वो चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 to 1. ठीक है, दैट इज 0 to x is equals to 1. दिस इज ऑल along AB. ठीक है, फिर y है, y 0 to 0, that is no change, so it is constant. z है 0 to 0, so even that is constant. अब इससे हमें मतलब क्या मिलता है, that dy dz is equals to 0.
वाई? क्योंकि उसका डेरिवेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पे डी वाई का टर्म और डी जेड का टर्म 0 हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ द डी एक्स टर्म. अब हमारी ए टू बी की लिमिट क्या थी? एक्स वॉज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 to 1. We are solving with respect to, over here we also have the y value, correct? So y की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे? a में a to b में 0 है. So this term gets cancelled, so we are just left from 0 to 1. So that will give me 3x cube upon x होल अपॉन 0 to 1. ठीक है, तो हमें पहले 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके बाद 0 करेंगे. दैट वी ऑल नो. सो ये 3 गेट्स कैंसिल. सो इट इज़ 1 क्यूब माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू 1. दिस इज f dot dr of a to b. अभी सेम. नाउ हम दूसरी साइड लेंगे, दैट इज अलॉन्ग b to c. अब b to c लेंगे अलॉन्ग, तो उसका x वैल्यू क्या है? x 1 to 1 वो कांस्टेंट है, और z 0 to 0 कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या है यहाँ पे? y. तो x is 0, y gets changed from 0 to 1 and z is 0. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? So that is my dx is equals to 0 and dz is equals to 0. Correct? अभी we will follow the same pattern. यहाँ पे we are having of BC, correct? So the entire function. अब now we all know कि जब वो dx और dy टर्म होगा तो वो 0 हो जाएगा. So now we will just write the dy टर्म. dy टर्म यहाँ से क्या मिलेगा हमें? -14yz dy. -14yz dy. Correct? Now we have to substitute the z value because z के टर्म में कुछ नहीं है and z यहाँ पे 0 है. So the entire term gets 0 by default. So here we are ending with this. Now along CD. Now along CD की क्या कहानी है? यहाँ पे 1 1 1 1 and the z gets changed. So z को छोड़ के that is x is equals to 1, y is equals to 1, but z is equals to 0 and it is changing to z is equals to 1. So this is constant और ये भी constant है. तो my dx is equals to 0 and dy is equals to 0, है ना? सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द z टर्म. और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स अगर मेरे 0 हो जाएंगे तो dy टर्म आएगा हमारे पास, दैट इज 20xz². यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, सो दैट इज 20z² dz, और लिमिट है 0 to 1. सो दिस इज गेटिंग मी एट 20z³ by
3 0 to 1। यहाँ पे आंसर हमें आ जाएगा 20/3। अब हमने ये तीनों इंडिविजुअली हमें ढूंढ लिए हैं। नाउ वी विल जस्ट ऐड ऑल द 3। a to b की वैल्यू क्या है हमारी? a to b इज़ 1, b to c इज़ 0 एंड c to d इज़ 20/3। 1 + 0 + 20/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 23/3 इज़ माई आंसर। करेक्ट। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। यहाँ पे दो एप्लीकेशंस हैं। एक वर्क डन बाय फोर्स, मतलब इंटीग्रेट करके कितना वर्क डन हुआ है वो फंक्शन से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा इफ़ द फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्क डन का क्या है? बाय फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कर्व सी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वर्क डन का फॉर्मूला इज सिमिलर ऑफ दैट द इंटीग्रल। यहाँ पे सिर्फ हमें लिमिट जो रखनी होगी वो कर्व में दी गई होगी ए टू बी की। यू विल हैव दी वर्क डन। मूविंग टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द पाथ। यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी सपोज दैट वी आर हैविंग C1 and C2 are two piecewise smooth curves that have same initial point and same terminal point. Then we will have these two integrals equal to each other. अब इसको थोड़ा वैसा वर्सा भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे दो कर्व्स का इंटीग्रल सेम है, दैट मीन्स कि उन दोनों कर्व्स का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। करेक्ट। अब इसके साथ साथ हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो लाइन इंटीग्रल कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का होता है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट। नाउ अगेन द क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड? इसके लिए थोड़ा हम प्रीवियस वीडियो में ही जानना पड़ेगा कि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है अबाउट दिस, बट लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज इट अगेन फॉर यू गाइज। डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर ज़ीरो हो तो हमारा जो वेक्टर फील्ड होता है दैट इज सोलोनॉइडल और इनकम्प्रेसिबल। और अगर हमारा कर्ल ज़ीरो आया तो इट इज़ इररोटेशनल एंड कंजर्वेटिव। अगेन अभी कर्ल क्या है? तो तुम्हारा कर्ल ऑफ होगा क्रॉस प्रोडक्ट एंड यहाँ पे डाइवर्जेंस इज करेक्ट डॉट प्रोडक्ट, है ना? तो इन सब से वी कैन कंक्लूड कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना? इंडिपेंडेंट पाथ क्या कहता है कि जो पहला और इनिशियल, जो पहला दैट इज इनिशियल और जो दूसरा दैट इज द टर्मिनल पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स पे ही डिपेंड करे, दैट कैन बी टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एंड जो कंजर्वेटिव होता है वो क्या होता है? जो कंजर्वेटिव फील्ड सिर्फ वो ही होता है जो सिर्फ ये दो पॉइंट्स पे डिपेंड करे। मतलब वी कैन स्टेट कि ऑल कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर विल हैव कि यहाँ पे पीस वाइज का क्या मतलब है? पीस वाइज स्मूथ कर्व्स क्या होते हैं? विच हैव डिफरेंट डेफिनेशन ऑन ईच नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है। So now to get more clear idea, we always solve a question. तो we will start with the same. यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पे ये फंक्शन है, we have to first find work done from point this to this, show that f is a conservative field, also find its scalar potential. तो ये एक क्वेश्चन में ना मैंने दोनों पार्ट्स ले लिए कि तुम्हारा वर्क डन भी आ जाएगा और तुम्हारा इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ का भी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? So we will start with work done. Work done की फॉर्मूला अब भी जस्ट बताई थी, that is equals to f dot dr a to b। यहाँ पे मेरा f क्या है? 2xy plus z cube dot dr तो we all know it now। yes, this is a to b। डॉट प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, दैट इज 2xy plus z cube dx
plus x square dy plus 3zx dz. Now what are we doing forward is differentiate करेंगे. That would be 2x square y upon 2 plus 3xz cube upon 3. So then you will be having this. a की वैल्यू क्या है 3,1,4 and this is 1, -2,1. So this is a to b. Correct. आगे this 2 gets cancelled, so here I went 2y. The same limits रहेंगे हमारे. On solving we get 9 plus 92 minus of -2 plus 1. इसको solve करेंगे we will have minus of -1, so that is +1, and you will have 202 your answer. So your work done is ठीक है. वर्क डन क्लियर हो गया. नाउ वी हैव टू गो टू प्रूव कि कंजर्वेटिव फील्ड भी है ये. अब टू प्रूव कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट शुड बी 0 है. अगर मुझे शो करना है कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड तो उसका कर्ल दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी 0 है ना. तो वी विल स्टार्ट फाइंडिंग द कर्ल. रिमेंबर आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई एंड डी बाई डी जेड. अब हमारे फर्स्ट टर्म्स हो गए यहाँ पे 2xy प्लस जेड क्यूब एक्स स्क्वायर और 3z² एक्स. यस अगेन थोड़ा सा मेहनत है यहाँ पे. अगेन टू सॉल्व we will hide this column, remaining the 4, that is d by dy of zx minus d by dz of x square minus j. We will hide this column. We have d by dx of 3z square minus plus k. We will hide this column. यहाँ पे y ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा. सो ये है 0 है माइनस. ओके फॉर हैविंग दिस. तो हम आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे. दैट इज 3z² माइनस z के लिए 3z². k का सॉल्व करेंगे. x इज 2x माइनस 2x. तो ये सब हमारा हो जाएगा 0 है माइनस 0j प्लस 0k दैट इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर we can conclude that the function which is given is conservative field है ना, because we got our answer 0. अब हमें आगे भी कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में. अब वो क्या पूछा गया हमारे क्वेश्चन में कि also finds its scalar potential. अब स्केलर पोटेंशियल के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है. we need a new concept to know. Actually not a new, but we need to have a clear idea. और रिमेंबर हमने पहले वीडियो में ग्रेडियंट किया था. दैट इज ग्रेडियंट क्या था, जो हमारा वेक्टर ऑपरेटर होता है उसके साथ स्केलार का मल्टीप्लिकेशन. तो ये जो स्केलार है इट इज आवर स्केलार पोटेंशियल. सो ये स्केलार है. स्केलार से हमें
ग्रेडियंट ढूंढने के लिए हमने क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। बट अगर हमें इससे वापस इधर जाना हो तो वी विल इंटीग्रेट, करेक्ट। सो हमें बस वही करना है ना, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टू गेट द स्केलर पोटेंशियल। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम योर ओनली। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, वी विल जस्ट राइट डाउन द फंक्शन। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग यूज़ करना है। यहाँ पे एक्स एंड डी वाई की टर्म्स हम साथ में ले रहे हैं, प्लस और इसका टर्म हम साथ में लेंगे। अब वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो आंसर है वो हमें तब मिलेगा कि जब हम एक्स स्क्वायर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। मुझे तो ओपन करके देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। बट अभी इससे ये आंसर लाना कैसे होता है, वी हैव दिस थिंग, अगर डी एक्स है तो एक्स को छोड़ के, एक्स और उसका जो वो मल्टीपल है वो छोड़ के जो बचा वो लिखना है, और डी वाई है तो वाई को छोड़ के, देयर इज़ नथिंग, वाई को छोड़ के जो बचा वो लिखना है। नहीं समझा, वी विल जस्ट डू इट वन मोर टाइम ओवर हियर। यहाँ पे भी वी हैव द सेम थिंग, एक्स डी एक्स है, एक्स को छोड़ के जो बचा वो लिखेंगे, डी जेड है, जेड को छोड़ के और मल्टीपल को छोड़ के जो बचा वो लिखेंगे। समझा? आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यू प्लस सी। दिस इज आवर स्केलर पोटेंशियल। So is our question satisfied now? Yes. To get thoda more clarity, we will solve one of the question. Show that the integral is independent of the path joining the points and evaluate the function. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ प्रूफ करने के लिए हमें वो कंजर्वेटिव प्रूफ करना पड़ेगा, और कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। So that is curl of the first, the second, and we do not have the dz term, that is 0. अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे दिस इज 0 एंड डू नॉट हैव एनी जेड टर्म, तो ये भी 0 हो जाएगा। दैट इज 0i माइनस 0, अगेन नो जेड टर्म, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के, दैट इज 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy minus plus minus 3y. So this term again gets 0. So that is 0i minus 0j
plus 0k is equals to 0. We have proved curl of the vector 0, so that is independent of the path. Now the second point says evaluate the function. अब evaluate कैसे किया जाता है? Yeah, that's all. बस उसको फिर से सोल्व करना है. So you are having x square plus y dx plus x square y plus 3x square dy. अब हम उसको ओपन करें. So that is x square dx और plus x square dy plus y dx plus 3x y square dy. अगर हम ये दो टर्म्स को साथ में करें तो हम उसको पहले उसका डिफ्रेंसिएशन किससे ये हुआ वो फाइंड करना है ना. माइनर करेक्शन. यहाँ पे वो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड बाय 2 करूँ. तो इट इज़ वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि वी विल फाइंड आउट अगर x को हम x के साथ x को छोड़ेंगे और वो तो बचेगा y और dy है y और उसको छोड़ेंगे और बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इट इज़ द वेरिएबल भी है एंड एवरीथिंग इज़ प्रॉपर. अगर यहाँ पे x छोड़ेंगे तो ये बचा और y छोड़ेंगे एंड ये तो नहीं करेक्ट. देन यहाँ पे हाफ. यहाँ पे a टू b के वैल्यूज़ क्या है हमारी. फर्स्ट इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई क्यूब. यहाँ पे a की वैल्यू हमें दी गई थी 1.2 से 3.4 तक. दैट इज पहले यहाँ पे ये सॉल्व पुट करेंगे पूरे में, देन इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 144 अपॉन 2 प्लस 192 माइनस अगर वो पुट करेंगे तो दैट इज 4 अपॉन 2 प्लस 8. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 640 माइनस 10, so that is equals to this is the value of symmetric. Now moving on the next question. Find the component A so that A is a conservative vector field and A की वैल्यू ये दी गई है. conservative vector field मतलब again we are finding curl. I J K. I क्या है ax y माइनस जेड क्यूब यहाँ पे कोई y टर्म नहीं है तो दिस गेट 0. यहाँ पे कोई z टर्म नहीं है तो दिस एंटायर गेट्स 0. यहाँ पे वी आर हैविंग x एंड यहाँ पे भी वी आर हैविंग z, सो वी विल सॉल्व इट एज
ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो वी विल हैव जेड स्क्वायर माइनस अब हमें दिया गया है कि दिस इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर। नाउ टू बी अ कंजर्वेटिव वेक्टर ये दोनों टर्म्स भी ज़ीरो हो, है ना। रिमेंबर इट वाज 0i + 0j + 0k इज इक्वल्स टू 0। i 0 है, j भी 0 होगा और k भी 0 होगा टू गेट द ओवरऑल रिजल्ट 0। सो एनी ऑफ इट आई कैन चूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। उसको हम 0 से कर देंगे। j की वैल्यू थी 4z² माइनस az² इज इक्वल्स टू 0, तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। और अगर हम k से भी करना चाहें तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। हाउ वी विल शो योर, यहाँ पे अगर मैं z² को कॉमन लूँ माइनस a इज इक्वल्स टू 0, z इज गेट्स कॉमन एंड दिस इज a इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे भी अगर मैं x को कॉमन लूँ, दिस इज a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x वहाँ पे जाके 0 एंड दिस इज a इज इक्वल्स टू 4। यू गेट द सेम आंसर एंड बोथ द साइड्स, करेक्ट। सो द वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट a इज इक्वल्स टू 4। Now moving towards the Green theorem. What Green theorem says? Green theorem is just a application of line integral, you can say। वो बस एक continued form है line integral का। कैसे? P अगर xy terms में, Q xy terms में, both are continuous function in the region R of the xy plane bounded by a closed curve C, then जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज p डॉट डी एक्स क्यू डॉट डी वाई, ये जो क्वेश्चन दिया होगा ऐसा उसको सॉल्व करना है उसके q के डिफ्रेंसिएशन से माइनस p के डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और डबल इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स। आई नो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट ट्रस्ट मी, सॉल्व करते वक्त इट इज़ वेरी सिंपल। हम एक सम सॉल्व करेंगे सो दैट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ थोड़ा सिंपल तो है। f की वैल्यू हमें यहाँ पे f इज इक्वल्स टू साइन yi प्लस x1 cos yj। अभी यहाँ पे evaluate the line integral using green theorem where c is the circular path given by this। ठीक है, तो evaluate करेंगे। चलो let's evaluate our circular path। sin yi plus x1 plus cos yj dxi plus dyj plus dz। डॉट प्रोडक्ट है, सो वी आर हैविंग, ये हम सॉल्व करते जब हमारा इंटीग्रल होता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड हमें जाना था, तो ये जो टर्म है दिस इज आर p टर्म और ये जो टर्म है दिस इज आर q टर्म। सो फर्स्ट हम dp बाई dy ढूंढेंगे, सो दैट इज ऑफ साइन y, और dq बाई dx ढूंढेंगे दैट इज x1 प्लस cos y। dp बाई dy पे हमारा आंसर आ जाएगा cos y और dq बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos y। करेक्ट। नाउ
अगेन थोड़ा हम फॉर्मूला पे ध्यान दें। P dot dx Q dot dy is double integration dx और dy। करेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला था। अभी हमने ये दोनों टर्म्स ढूंढ लिया है। करेक्ट, सो हम उसको बस आगे सॉल्व करना है थोड़ा। डी क्यू की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 1 प्लस cos फाइव, माइनस डी पी की वैल्यू थी cos फाइव, एंड दिस वाज डी एक्स बाई डी वाई। अब ये ऊपर करके हमारे पास 1 बचता है। अब डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे हम फिर से थोड़ा ध्यान देंगे। C इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाय दिस। ये जो इक्वेशन सर्कल की है, यहाँ पे A इज द रेडियस, बराबर, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। A इज द रेडियस, this means the area of the function which we are having over here। अब सर्कुलर पाथ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमें दी गई थी पाई ए स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। दिस इज हाउ यू यूज द ग्रीन थ्योरम। Let us just finish our lecture over here and continue in the next. Thank you so much for watching.